Dear students, today we shall be talking about various environmental factors or ecological factors, or we also call them as the eco factors, which play an important role in the presence or the growth and development of different plants and animals in the environment. Before starting, it is my request to you all to like and subscribe my channel BioLearning. Now, let us have a quick recap of what we learned in the earlier part of this very lecture. We discussed about the ecology. Ecology is derived from the Greek word eikos, which means house or place, and logos, which means to study or discourse. And the most accepted definition of this very ecology is the reciprocal relationship, that it is the reciprocal relationship between organisms and their environment. This very definition was proposed by Ernst Haeckel in 1886. Last time, we also discussed about the definition as proposed by the Odum, and he said that it is a study of structure and function of nature. It is simply the study of the structure and function of the nature according to the Odum. And according to Mishra, 1967, it is the interaction of the form, function, and factors. We also discussed that this term ecology was coined by Ritter in 1868, and Mivart also proposed the term hexecology, and bioecology was coined by Shelford and Clements. We also talked about the various subdivisions of the ecology. We talked about the art ecology, we talked about the sin ecology, we talked about the habitat ecology, under which we talked about the terrestrial ecology, freshwater ecology, marine ecology. We talked about the ecosystem ecology, population ecology, community ecology, gene ecology, paleoecology, applied ecology, system ecology, space ecology, or terrestrial ecology. But today we shall be dealing with the various environmental factors. Now, just have a quick recap that when we talk about the ecology, we simply say that it is the science which deals with the reciprocal relationship between the organisms and their environment. Now, when we talk about the environment, जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो भी सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द होती है, हम उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं सिंपल मानों में। और हर वो फैक्टर जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके काम करने में या उसकी फॉर्म पर किसी भी खास मौके पर या किसी भी तरह से कोई भी फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म पर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी फॉर्म और फंक्शनिंग पर इफेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक वे में, हम उसको इकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं. So we say simply any factor which affects directly or indirectly the form and functioning of the organism in a specific way. And this is called, or these very factors are called as the ecological factors or the environmental factors. Now, what are the environmental factors? होते क्या हैं ये environmental factors? हम इसको एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं, हम इसको इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं, हम इसको इको फैक्टर भी बोलते हैं, जो कि बने होते हैं एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से. जब हम एबायोटिक बोलते हैं, ए का मतलब होता है नहीं, बायोटिक मतलब लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट है हम उसको एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं. और बायोटिक यानी कि लिविंग, जो भी लिविंग कंपोनेंट है, जो भी एनवायरनमेंट का लिविंग कंपोनेंट है, वो कंप्राइज करता है, वो बनाता है उसके बायोटिक फैक्टर्स. तो एनवायरनमेंट बना होता है एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स का. अब ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? हालांकि इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है, सिंपल वे में बताने की कोशिश की है कि इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कभी कभार 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है.
हम इसे डिवाइड करते हैं क्लाइमेटिक या एरियल फैक्टर्स में। अगर हम क्लाइमेटिक यानी कि वो फैक्टर्स जो मौसम के साथ तब्दील होते रहते हैं, हम उनको क्लाइमेटिक या फिर एरियल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि लाइट है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है या फिर हम इसे एरियल फैक्टर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है। और सर्दियों में लाइट ड्यूरेशन कम होती है और गर्मियों में ज्यादा होती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि हम ग्लोब के किस हिस्से में रहते हैं, किस हिस्से पर रहते हैं। तो पहला आ गया लाइट, एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर टेम्परेचर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर रेनफॉल है, क्योंकि रेनफॉल भी प्लांट्स या एनिमल्स के होने और ना होने पर किसी जगह पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है, और एटमॉस्फेरिक गैसेस और विंड भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड जो हैं, ये क्लाइमेटिक या एरियल फैक्टर्स कहलाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ टोपोग्राफिक फैक्टर्स की। अभी टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं क्या? टोपोग्राफिक यानी कि जो हम हमारी जमीन की बनावट या जमीन की उतराई, नीचाई और ऊंचाई या उसकी जियोग्राफी पर डिपेंड करता है, हम उसको टोपोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं। जिस तरह से आल्टीट्यूड भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मीन सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। तो वो ऊंचाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होना या ना होना तय करती है, क्योंकि हर ऊंचाई पर हर जानवर नहीं पाया जाता है। कुछ खास किस्म के जानवर ही किसी खास ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या किसी खास तरह के पौधे या पेड़ ही खास ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम मैदानी इलाकों में जाते हैं तो हमें कभी देवदार या स्प्रूस या फर नहीं दिखता है, मगर जो जो हम ऊंचाई पर पहाड़ पर ऊंचे की तरफ जाते हैं तो हमें देवदार, स्प्रूस, फर जैसे दरख्त जो हैं वो दिखाई देते हैं, और एवरग्रीन हमें जो है दरख्त दिखाई देते हैं। अच्छा, माउंटेन की डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि माउंटेन की डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थवर्ड है, साउथवर्ड है, ईस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ऑर्गेनिजम्स पर। अच्छा, माउंटेन का स्लोप या स्टीपनेस, कि कितनी स्टीप है माउंटेन, या तो बिल्कुल खड़ी है या कितनी स्टीप है। तो ये स्टीपनेस और स्लोप माउंटेन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है प्लांट्स और एनिमल्स के होने या ना होने पर, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट करता है, उनकी प्रेजेंस पर इफेक्ट करता है। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास, हम उस कैटेगरी को एडाफिक फैक्टर बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो एडाफिक फैक्टर है। पहली कैटेगरी आ गई हमारे पास क्लाइमेटिक एंड एरियल फैक्टर, दूसरी कैटेगरी आ गई हमारे पास टोपोग्राफिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, और तीसरी कैटेगरी एडाफिक यानी कि जमीन से, सॉइल से जुड़ी हुई चीजें, हम उनको एडाफिक फैक्टर्स बोलते हैं। यानी कि सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की। तो ये एक इंपॉर्टेंट असर डालती है एनिमल्स और प्लांट्स पर। तो एडाफिक फैक्टर्स में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की ये एक अहम रोल अदा करती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पर किस तरह से असर डालती हैं। जिस तरह से अगर मैं सिंपल मानूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। अच्छा, प्लेन्स में हमें ज्यादातर एलुवियल सॉइल मिलती है जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। तो सॉइल की डिफरेंट तरह की सॉइल्स हमें मिलती है। हमें लोमी मिलती है, हमें सैंडी मिलती है, हमें सिल्टी मिलती है, हमें क्लेई लोमी मिलती है, हमें 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 सिर्फ सैंडी मिलती है, तो जो डेजर्ट में ज्यादातर पाई जाती है, सूखे इलाकों में पाई जाती है। तो यानी कि सॉइल की टाइप, सॉइल की फॉर्मेशन और सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा असर डालती हैं प्लांट की फंक्शनिंग, प्लांट और एनिमल्स दोनों की फंक्शनिंग पर। तो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पर एक अहम रोल अदा करती है किसी भी स्पेसिफिक वे में।
अच्छा, जो चौथी कैटेगरी हमारे पास है, हम उसको कैटेगराइज करते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। अच्छा, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जानदार, यानी कि जान जो भी जानदार है उन लोगों से, उन ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से, एनिमल से जुड़ी हुई चीजें, जिस तरह न्यूट्रलिज्म है, ये एक तरह की एसोसिएशन है, या कोमेंसलिज्म है, प्रोटोकॉपरेशन है, म्यूचुअलिज्म है, एमेंसलिज्म है, पैरासिटिज्म है, प्रिडेशन है, कंपटीशन है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालते हैं। हम इन सब चीजों को एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? वो हर कोई वो फैक्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म और फंक्शनिंग में, ऑर्गेनिज्म के फॉर्म या फंक्शनिंग में किसी भी स्पेसिफिक वे में असर डालता है, हम उसे इकोलॉजिकल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिर हम उसे बोलते हैं इको फैक्टर। अच्छा, इनको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जो कि हम इकोसिस्टम के दौरान भी हम लोग थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे, मगर ब्रॉडली हम इसे यहीं पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मगर इकोसिस्टम में भी हमें काम आ सकता है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारे पास अब आप लोग जान गए कि आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक और एडाफिक फैक्टर्स आते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट में आपके पास आएंगे न्यूट्रलिज्म, कोमेंसलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन और कंपटीशन। हम अब जानेंगे, क्योंकि हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स से के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये लीबिग ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ये क्या चीज है। हम असल में ये जाना जाता है लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से, मगर असल में ये जो लॉ है, ये स्प्रेंजल नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। कार्ल स्प्रेंजल नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था एक प्रिंसिपल, खास तौर पर एग्रीकल्चरल साइंस में, मगर इसे पॉपुलराइज करने में अहम रोल अदा किया जस्टिस वॉन लीबिग ने। तो इसी वजह से इसका नाम लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम पड़ा। तो मगर हम ये भी जानेंगे कि ये लीबिग ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्यों कहलाता है। तो हम लोग जान गए कि लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम असल में कार्ल स्प्रेंजल का काम था, जो कि उसने एग्रीकल्चरल साइंस में किया था, मगर इसे पॉपुलराइज लीबिग ने किया, तो इसीलिए इसका नाम लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम रखा गया। तो क्या है ये लिमिटिंग फैक्टर? असल में लिमिटिंग फैक्टर ये बताता है कि ये जो ग्रोथ है, चाहे वो खास, क्योंकि एग्रीकल्चरल साइंस में ये लॉ खोजा गया, तो इसलिए हम इसको क्रॉप्स पर ही बताने की कोशिश करेंगे। असल में यहां पर बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो भी टोटल रिसोर्सेज है, अगर कोई प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसमें से एक अहम रोल अदा करती है जो रिसोर्स सबसे स्कार्स है। यानी कि अब देखिए, मैं इसको इस छोटे से इसकी वजह से दिखाने की कोशिश करूंगा, इस डायग्राम की वजह से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर आयरन भी है, आपके पास जिंक भी है, बोरान भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, कोबाल्ट भी है। अच्छा, अब देखिए, यानी कि अगर एक क्रॉप यहां तक ग्रो कर सकती है, यहां तक ग्रो कर सकती है, अगर उसको बोरान भी मिले, जिंक भी मिले, आयरन भी मिले, कोबाल्ट भी मिले, मगर अगर उसे पोटेशियम ना मिले, जो कि यहां पर दिखाया गया है, अगर उसे पोटेशियम ना मिले तो उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी। यानी कि यानी कि उसकी सारी की सारी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। मगर अगर उसे पोटेशियम भी पूरी मिकदार में दिया जाए तो वो बराबर अपनी ग्रोथ शो करेगी। यानी कि अब यहां से क्या हमें सुनने को मिलता है? सुनने को यह मिलता है कि बेशक सब न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी मिकदार में होने चाहिए, मगर ग्रोथ एक प्लांट की जो सबसे स्कार्स है, सबसे कम है रिसोर्स,
उस पर मबनी है, उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो वाली फैक्टर उसे कम दिया जाए तो स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी। यानी कि एक प्लांट में आप सब न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो, सिर्फ एक ऐसा फैक्टर जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर वो न्यूट्रिएंट आप नहीं डालोगे तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। बेशक वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, मगर वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालकर प्लांट को स्टंटेड बनाएगी, यानी कि उसको बिल्कुल छोटा रखेगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। अब इसको हम जरा कोशिश करेंगे समझने की। इट स्टेट्स दैट द ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय टोटल रिसोर्सेज, यानी कि सबके सब रिसोर्सेज अगर दिए जाएं तो ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बट बाय द स्कार्सेस्ट रिसोर्स, उस रिसोर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट है जो सबसे कम मौजूद है, जो सबसे कम मौजूद है। तो यानी कि ये दिखाया गया है, एक बैरल दिखाया गया है कि उसमें अगर पूरे का पूरा बैरल आप भरने की कोशिश करेंगे, मगर चूंकि यहां पर पोटेशियम जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, पोटेशियम जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो वो सारे का सारा लीकेज यानी कि ग्रोथ जो है वो उसी उसी की वजह से स्टंटेड रह जाएगी। पूरे का पूरा बैरल पानी से नहीं भरेगा, क्योंकि पोटेशियम वाली जगह पर जो जगह है वो बहुत ही कम है और वहां से सारी लीकेज हो जाएगी, इसलिए ये जो ग्रोथ है ये कम रहेगी। दिस वेरी लॉ हैज आल्सो बीन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस एंड इकोसिस्टम मॉडल्स फॉर द फैक्टर्स सच एज सनलाइट और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो इस लॉ को फिर आगे भी आजमाया गया, बहुत सारी बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस में, इकोसिस्टम मॉडल्स में इसे अपनाया गया। जो मैं अभी आपको बैरल की एग्जांपल बता रहा था, ये असल में ये डोबिनेक्स ने इस इमेज को सामने लाया, पेश किया और इसका नाम दिया लीबिग्स बैरल। तो अब आपको ये समझ में आ गया। ये बताने की कोशिश की गई, बेशक सब के सब जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं जो कि ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, मगर वो रिसोर्स जो बहुत ही कम क्वांटिटी में में चाहिए होता है, अगर वो ना मिले तो सब का सब जो क्रॉप है वो स्टंटेड रह जाएगी। और ये जो यहाँ पर बैरल की इमेज दिखाई गई है, यानी कि वो पूरे का पूरा बैरल नहीं भरा जाएगा अगर उसमें एक जो सबसे स्कार्सेस्ट जो रिसोर्स है वो अवेलेबल ना हो या बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ये लीबी-ग्लास लिमिटिंग फैक्टर, इसमें लिमिटिंग फैक्टर भी डेवलप किया गया। अब हम बात करेंगे कि इसे लीबी-ग्लास लिमिटिंग फैक्टर्स क्यों कहा गया। असल में अभी तो हमने बात की कि ये लीबी-ग्लास मिनिमम है, कि वो रिसोर्स जो मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होती है वो सबसे ज्यादा असर डालती है। मगर अब हमारे पास जो लॉ है वो है लीबिग ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये ब्लैकमैन कहां से ऐड हो गया और लिमिटिंग फैक्टर्स कहां से ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ, एक एफ ब्लैकमैन 1905 में उस इसमें लिमिटिंग फैक्टर को इंक्लूड किया गया, जबकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ब्लैकमैन जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहा था, उसने इसके साथ में लिमिटिंग फैक्टर्स को जोड़ दिया और ये लॉ बन गया लीबिग ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम। दिस वेरी लॉ ऑफ मिनिमम हैज बीन रीस्टेटेड बाय द टेलर इन 1934 और इसको टेलर ने रिप्रेजेंट किया और इसे कहा गया, इस तरह से इसे पेश किया गया कि द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is controlled or limited by that essential environmental factor or combination of the factors present in the least favorable amount। जैसा कि अभी मैंने बात की, तो पहली बात कि ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग, चाहे वो प्लांट है या चाहे वो एनिमल है, वो कंट्रोल होती है एसेंशियल एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर कॉम्बिनेशन पर, जो सबसे कम अमाउंट में या फेवरेबल अमाउंट में मौजूद होती है। So the factors may not be continuously effective, but only at some critical period during the year, or perhaps only during the critical year or a climatic cycle. So we are talking about those factors which are not continuously effective. ये हर वक्त ये जो लॉ है ये हर वक्त लागू नहीं रहता है, बल्कि कभी कभार ये किसी क्रिटिकल पीरियड में लागू होता है
और किसी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक साइकिल के दौरान लागू हो सकता है। अच्छा, अब जो हमने बात की थी यहां पर ब्लैकमैन की, कि ब्लैकमैन ने इसमें इस लीबिग लाफ मिनिमम के साथ में लीबिग ब्लैकमैन लाफ लिमिटिंग फैक्टर्स जुड़ गया। असल में उसने काम किया फोटोसिंथेसिस पर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। उसने क्या किया, he listed 5 factors in the controlling the rate of photosynthesis. तो उसने लगभग 5 जो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं उनको पेश किया, उनको स्टडी किया। पहला कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, और दूसरा वाटर, द अमाउंट ऑफ द वाटर अवेलेबल। तीसरा इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन की हमने बात करेंगे, सोलर रेडिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल और टेम्परेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये लीबिग लाफ मिनिमम था, मगर इसके साथ में अब ये लीबिग ब्लैकमैन लाफ लिमिटिंग फैक्टर जुड़ता है, क्योंकि ब्लैकमैन ने 1905 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर स्टडी की और लगभग 5 फैक्टर्स पर उसने काम किया कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ वाटर और रेडिएशन, क्लोरोफिल और टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस पर इसने काम किया और उसने ये जाना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is bound by the level of the factor that is operating at the limiting intensity। इसका मतलब ये है कि उसने ये देखा कि ये जो हमारे पास 5 फैक्टर हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंडेंट है ज्यादा? ये ज्यादा उस चीज पर डिपेंडेंट है जो सबसे लिमिटिंग है, यानी कि जो सबसे कम है, जो कम मिकदार में पाया जाता है, और वो सबसे ज्यादा असर डालता है एक प्लांट पर। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो नाम दिया गया लीबिग ब्लैकमैन लाफ लिमिटिंग फैक्टर। अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो कुछ प्लांट्स में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और वो लार्ज क्वांटिटीज में इस्तेमाल होता है। कुछ को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, और कुछ को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है या प्लांट्स उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, तो ये कहलाए जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आयरन, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन आते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सिलीनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन और बेरियम आते हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं पर आता है तो आपको ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में अगर क्लोरीन रखा जाए तो आपको ये बताना है कि क्लोरीन जो है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप क्लोरीन लिखेंगे। अगर आपके पास बताया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो वहां पर दिया होगा सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, बोरान और साथ में फास्फोरस, तो आपने फास्फोरस को टिक करना है कि फास्फोरस जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसलिए आपको ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी। हाँ, एक चीज और जो हमें हमारी इकोलॉजी में यूज होती है, दैट इज शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। असल में ये क्या है शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस? शेल्फर्ड ये बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक टॉलरेंस लेवल है, एक ऑप्टिमम रेंज है, जिसके नीचे या जिसके ऊपर उसका जिंदगी गुजारना मुहाल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। वी शेल्फर्ड ने एक लॉ 1913 में 1913 में दिया। वी शेल्फर्ड उसका पूरा नाम था। उसने ये बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक टॉलरेंस रेंज है, उस लेवल के मिनिमम में या मैक्सिमम में ऑर्गेनिज्म जो है अनकंफर्टेबल फील करता है। जिस तरह से इस डायग्राम को देखकर हम लोग बिल्कुल जान जाते हैं
कि ये वाली जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेंज बताई गई है ये एक ऑप्टिमम रेंज है। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं, यहाँ पर फिश दिखाई गई है, तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस रेंज में पाए जाते हैं, यानी कि ये रेंज जो है ये ऑप्टिमम रेंज है। और इस रेंज के लवर में या इस रेंज के अपर लिमिट में बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो और ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस लेवल भी इस लवर जोन या हायर जोन में कम होती है। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की अपनी टॉलरेंस रेंज होती है, हम उसको लिमिट ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। मान लीजिए हम टेम्परेचर की बात करें, तो अगर ये टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज है तो उसके ऊपर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और ऑर्गेनिज्म को मजबूर करते हैं वहां पर रहने के लिए, तो उस जोन को हम जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम इसको बोलते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस, और यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। और अगर हम ऑर्गेनिज्म को यहां पर रहने के लिए मजबूर करते हैं तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म जो है वो हीट कोमा में चला जाए, हीट कोमा। और उसी तरह अगर हम इसी जोन ऑफ इनटॉलरेंस में लवर साइड में ऑर्गेनिज्म को रहने पर मजबूर कर दें तो यहां पर चिल कोमा हो जाए, चिल कोमा। तो उसके बाद अगर हम और टेम्परेचर को डिप करें तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। और अगर हम इस तरफ में भी, अगर हम यहाँ हीट कोमा के बाद भी हम अगर टेम्परेचर को और इंक्रीज करें तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसके प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे और उसके एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, तो जो है ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो शेल्फर्ड ने कहा कि ईच इंडिविजुअल हैज अ रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर एवरी फिजिकल वेरिएबल, whether it is salinity, whether it is precipitation, whether it is wind, whether it is insulation, whether it is nutrient. So every physical factor or every abiotic factor has a role on the organism in terms of being in its optima. अच्छा, अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए और उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर रेंज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो इसी के बिना पर हम ऑर्गेनिजम्स को, अगर टेम्परेचर में टॉलरेंस हो टेम्परेचर में, तो हम उन्हें यूरीथर्मल बोलते हैं, यूरीथर्मल, और स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल। अगर रेंज ऑफ टॉलरेंस उनकी बहुत नैरो है तो स्टीनोथर्मल, अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस जो है वो वाइड है हम उसे यूरीथर्मल बोलते हैं। और अगर मान लीजिए वो सैलिनिटी, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहता है, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो लो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहता है, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन बोलते हैं। और अगर इसी तरह पानी टॉलरेट करना, अगर ज्यादा पानी टॉलरेट करे तो यूरी हाइड्रिक, अगर कम पानी टॉलरेट करे तो यूरी स्टीनो हाइड्रिक। इसी तरह हम लोग डेप्थ के बेसिस पर अगर ज्यादा डेप्थ पर ऑर्गेनिज्म ज्यादा नीचे ऊपर करता है तो हम उसे यूरीबेथिक बोलते हैं, और अगर वो कम करता है तो स्टीनोबेथिक। और इसी तरह हमारे पास आता है अगर वो उसका खाने का अंदाज वाइड है, यानी कि वो ज्यादा उसकी फूड स्पेक्ट्रम जो है वो वाइड है, तो हम उसे यूरीफेजिक बोलते हैं। अगर नैरो है तो स्टीनोफेजिक बोलते हैं। यूरीफेजिक अगर वाइड रेंज ऑफ फीडिंग हैबिट है या फूड स्पेक्ट्रम है, और अगर तो यूरीफेजिक, अगर कम रेंज है तो स्टीनोफेजिक। इसी तरह हमारे पास निच या जो हैबिटेट है, अगर वो बहुत सारे हैबिटेट के हैबिटेट्स टॉलरेट कर सकता है या बहुत सारे हैबिटेट्स में रहने की क्षमता रख सकता है, तो हम उसको बोलते हैं यूरीशियस। और अगर वो बहुत ही नैरो उसका रेंज है तो हम उसको स्टीनोइशियस बोलते हैं। तो इसी तरह इसके बेसिस पर, यानी कि टॉलरेंस के बेसिस पर, हम ऑर्गेनिजम्स को यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरीफेजिक, स्टीनोफेजिक, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, यूरीबेथिक, स्टीनोबेथिक, यूरीशियस, स्टीनोइशियस, इन ऑर्गेनिजम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं।
तो हम लोग जान चुके कि जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और आज हम जान चुके कि लीबिग लॉ ऑफ ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम क्या है, हमने शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस जाना, और हमने जाना कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। अब हम इन्हें वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट को डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है लाइट को लेकर चलेंगे और वन बाय वन हम लोग इनको इकोलॉजी के इन पार्ट्स को हम लोग लेकर चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इकोसिस्टम पर आ जाएंगे। पहले हम इकोलॉजी के फैक्टर्स की बात करेंगे, मगर हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे, और फिर हम इकोसिस्टम पर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।